Good morning. This is the second class of operating system. Class was scheduled at 11 o'clock. Till now, none of student has joined this session. Still, I'm waiting for them. Okay. Smriti, are you there? Yes, sir. Okay. Actually, this is not afternoon, Smriti. This is morning. So, good morning. Where are others? Oh, sorry, sorry. Good morning. Where are other students? So I think that they are not knowing about the class. Yes. So I think that they are not knowing about the class. Why? I think they have the schedule, no? All of you have schedule for classes, Yes, sir. Yes, sir. and I think in that it is mentioned that right now I have a class. Yes, sir. At Okay, 11. kindly inform via any medium. I think you have a WhatsApp group. Kindly inform that. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, three of you have joined and others are coming. We will wait another 2 to 3 minutes so that everyone can join. In the meantime, I will admit all the students who will submit the request to join in the class.
Okay. So I think in the previous class I gave you all the instruction related with the classes and the marks scheme. Am I right? आप सभी को मार्क्स स्कीम के बारे में मैंने कल क्लास में बता दिया था। सभी प्रेजेंट थे कल क्लास में? Yes, student. My all classes will be a interactive classes. ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलता रहूं, आप लोग यहाँ पे सिर्फ क्लास ज्वाइन करके आप लोग बैठ जाएं, ठीक है? क्लास सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है, you have to respond in the class also. Otherwise, there will be no meaning of these online classes. You don't have to come here for the formality. You can give your responses via the chat or via the mic also. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So till now, I think 24 students have joined this session. Okay. Okay. And as I informed you in the previous class also that via the numerical approach, we will start our session. And in this numerical approach, first topic is schedule. Okay. So first I want to clear that what we are going to do in today's class, we will have a glimpse about how we can schedule our CPU in such a way that the efficiency of CPU is maximized. And in the case of CPU, how we will measure the efficiency? There is certain terms, technical term, which is known as throughput. Okay. So हम लोग क्या करेंगे? इस थ्रूपुट के जरिए हम लोग we can measure that what is the efficiency of our system. There are other terms also. Which will be detailed in the class. अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आप सभी से कि do you know about what is the meaning of scheduling? No, sir. Does anyone know what is scheduling? कभी शेड्यूल किया है आपने लाइफ में? कोई चीज, कोई भी चीज आपने शेड्यूल किया है लाइफ में? Schedule means timetable, sir. So to run a program in any order or to minimize the time of wastage scheduling. Okay, एक टर्म यहाँ पे आया है, मिनिमाइज करना है हमें सर। किसको मिनिमाइज करना था? आई थिंक टर्म आया था टाइम को हमें मिनिमाइज करना। और ये किस टाइप का टाइम होगा? वेस्ट होने वाला टाइम को हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना। ओके, सो इट इज
very important factor कि we have to minimize the time, because wherever there is a calculation for efficiency, there is a parameter known as time. ठीक है? Even the term which I talked about, the throughput is basically work done in per unit time, known as throughput. Okay, work done per unit time is known as throughput. और जैसा कि अभी मैंने बात किया कि have you ever minimized or schedule anything, तो किन्हीं ने जवाब दिया कि yes sir, we have scheduled our routine. Okay, जो आपको रूटीन मिला होगा ये किस लिए दिया गया है, ताकि सबसे पहली बात तो कि कोई भी हमारे बीच में क्या हो, we have so many faculties and those faculty have assigned subject and they have to take in a proper manner, that system should not be chaotic. chaotic नहीं होना चाहिए हमारा सिस्टम इफिशिएंटली, हमारा जितने भी वर्क आ रहे होंगे वो एक मैनेज्ड वे में हमारा कंप्लीट होना चाहिए. वर्क, जो भी वर्क हमारे पास आएगा वो एक मैनेज वे में कंप्लीट होगा. ओके, तो यहाँ पे इससे फायदा क्या होगा, ये होगा कि we don't have to bother about who will go first, who will go next, what they have to do. Everything is managed. Okay, this is the effect of schedule. Okay, इसी तरह से हमारा क्या होता है, सीपीयू को भी हम शेड्यूल करते हैं. अब आपने सिस्टम तो सभी ने देखा होगा. यस स्टूडेंट, हैव यू एवर encountered any kind of system? Yes sir. ओके, तो सिस्टम तो सभी ने देखा है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिस्टम में अगर हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा सीपीयू, which is abbreviated as, can anyone tell me what is the full form of CPU? The control processing unit. CPU is control processing unit. ठीक है, जितना भी प्रोसेस होगा उसको ये कंट्रोल करेगा. ओके, तो कंट्रोल इन विच सेंस, कंट्रोल इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या क्या यहां पे हो सकता है, सबसे पहले तो प्रोसेसर, फिर क्या हो सकता है आपका आईओ डिवाइस, फिर क्या हो सकता है आपका डिस्क, आईओ डिवाइस का पार्ट ही है डिस्क, फिर आपका क्या हो सकता है मेमोरी, ओके, फिर क्या हो सकता है आपका बसेस. तो इन सबको क्या करना है, मैनेज करना है, सो दैट हमारा इफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो. इफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमाइज हो. नाउ I draw a particular scenario here that we have certain process P1, P2, P3 and we have one CPU. हम यहाँ पे अभी जो सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मान के ये चल रहे हैं कि we have only one core, we have a single core system, एक ही CPU है हमारे पास and we have n number of process. ओके, एंड अब इतने n नंबर ऑफ प्रोसेस आ रहे हैं तो किसको सीपीयू पहले रिसोर्स एलोकेट करेगा, रिसोर्स, आई टॉक्ड अबाउट रिसोर्स हियर. रिसोर्स किसको एलोकेट करेगा, रिसोर्स कैन बी एनीथिंग, प्रोसेसर भी रिसोर्स हो सकता है, आईओ डिवाइसेस भी रिसोर्स होते हैं, बस भी हो सकता है,
आपका मेमोरी भी हो सकता है। तो किसको रिसोर्स एलोकेट करेगा in such a way that the efficiency of the system is maximized is the study of scheduling, is the study of CPU scheduling in precise. Okay. Did you got my point? किसी को कोई क्वेरी है तो they can ask. कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो Sir, आप पूछ सकते. Yes. Sir, can you repeat this once more? Which one? So the processes are you talking about P1, P2, P3? Okay. We will have a scenario in which we have more than one process in our system, like I'm giving that as a name P1, P2, P3. ठीक है, मैंने उनको नेम प्रोवाइड किया है P1, P2, P3. अब ये प्रोसेस जो होंगे ये एक साथ सिस्टम में आएंगे या एक एक करके आएंगे, कुछ इस टाइप से सिनेरियो होगा. एक कंप्लीट होगा उसके बाद एक आएगा, या एक साथ 5 प्रोसेस आ जाएंगे, ये सिनेरियो. बट at the same time, at a particular time, a system have more than one process. Now CPU has the responsibility that he has to pick a one process among all those processes and give to the resources what is required by that process. Resource can be anything, as I told you, that resource can be a processor, resource can be a memory, resource can be IO, resource can be bus, etc. Printer, even printer भी resource है आपका. तो इनको किस मैनर में हम दें कि हमारा एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमाइज हो. ओके, यही जो पूरा फिलॉसफी है, इसी को कहा जाता है कि शेड्यूल करना, सीपीयू को शेड्यूल करना. ठीक है. Did you got my point? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, now I will move forward. Now the next point is, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में कि process, how to get a process attached to a processor. Okay. Next, we have so many algorithms and we have so many measuring parameter. Turnaround time होता है, waiting time होता है, throughput होता है. ये सब measuring parameter हैं by which we will measure that which algorithm is working best for us. In a certain scenario, it may possible algorithm X is working fine, and in a certain scenario algorithm Y is working fine. Okay, it is not always possible कि आपका कोई किसी सिनेरियो के लिए बेस्ट काम करेगा, किसी के लिए हो सकता है कि वो खराब भी काम कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है वो है कि द डिजाइन ऑफ शेड्यूलर. जो शेड्यूलर होगा उसका डिजाइन क्या होगा. ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जो हमें इस पूरे सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर में पढ़ने हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या क्या होता है हमारा, वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग थ्रेड वगैरह, ये सब. I think these part are not necessary. Okay, so we will study about this particular point. If you have urge, if you will have an urge or you have an interest in the threads and working algorithm, then you can jump upon to that. I will give you materials for them. Okay. So first of all, we have to understand that the basic concept about the scheduling. Okay. So now jump upon to the certain jargons of this subject. First jargon is coming is
मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, यहाँ पे ध्यान ना दें। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? अभी तक क्या समझते हो, क्योंकि ये टर्म सुना तो होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? Sir, multi-programming means number of programs that can be executed at any particular time. Okay, it means at the same time we have Yes, so many programs program and processes. we have to manage them in such a manner that all those all scenario of is them known can as multi-program. Okay, so yes, you are very right that अगर हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें कि हमारे पास we have so many programs. Program can be, what is the meaning of program here? Yes, student, what is the meaning of program here? So program means set of instructions given to the processor. Set of instruction. Set of instruction. Okay. Set of instruction, like I am working upon word. At the meantime, I am listening music. Okay. And at the same time, I run a particular code which is running in the back end. So these are all is a work we have done, and these work will be splitted into instruction, a set of instruction. Like आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो वो स्ट्रोक पे क्या की स्ट्रोक क्या आप कर रहे हैं, लाइक आपका अभी म्यूजिक जो चल रहा है तो क्या नेक्स्ट में फ्रेम आने वाला है, आपका कोड अगर रन हो रहा है तो कौन सा लाइन ऑफ कोड रन हो रहा है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारे जो कि एग्जीक्यूट होने हैं हमारे सिस्टम में। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को ही मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। सिनेरियो, गेट इट? सभी को पता चला? देखिए, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो उसी समय पूछ लीजिएगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि आई विल रिपीट दैट। नाउ देखिए यहां पे क्या है, एक बार हम गो थ्रू हो लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के डेफिनेशन से। तो अ प्रोग्राम a number of program can be in memory at the same time. Okay, same time पे अगर होगा तो we have to allow overlap of CPU and IO. मैंने बोला था we have certain resources, CPU हमारा हो सकता है, IO भी हो सकता है, तो we have certain इनको overlap करना पड़ेगा, एक ही समय में हमें provide करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जॉब, अब जॉब किसको कहते हैं, तो बैच, इट मींस कि हम क्या करें, एक साथ मिला के जो एक ही टाइप का प्रोसेस है उनको हम एक साथ ग्रुप अप करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि दिस इज अ बैच। ओके, तो बैच आर प्रोग्राम्स दैट रन विदाउट यूजर इंटरैक्शन। अगर हम बात करें टाइम शेयरिंग के बारे में, तो टाइम शेयर्ड आर प्रोग्राम्स दैट मे हैव यूजर इंटरैक्शन। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको बैच कहा जाता है। तो बैच वो प्रोग्राम हैं, ये पहले तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं और इसको बैच बनाते हैं। ओके, अब इस बैच को जब हम सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं
तो यहाँ पे ज्यादा यूजर का इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आप प्रोवाइड करें कि कोई वैल्यू आपसे वो प्रोग्राम मांगा कि ये वैल्यू प्रोवाइड कीजिए, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ये वैल्यू प्रोवाइड करे तो वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। लाइक आपने कोडिंग किया होगा तो कोडिंग में ये होता है कि यूजर से कुछ डेटा मांगता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रन करता है, फिर बोलता है कि वाई की वैल्यू क्या है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रन करता है, देन वो बोलता है जेड की वैल्यू क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रन करता है, फिर उसके बाद जब फाइनल उसको सारे इनपुट मिल जाते हैं तो वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को और रन करता है और देन क्या करता है, वो फाइनल रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस सिनेरियो इज नोन एज टाइम शेयर्ड सिनेरियो। ओके, दिस सिनेरियो इज नोन एज टाइम शेयर्ड सिनेरियो। तो वी हैव टू सिनेरियो, बैच सिस्टम भी हो सकता है और आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम भी हो सकता है। नाउ अब सबसे पहली बात तो कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। Yes, does anyone have any idea what is process? तो मैं बता दूं, a program in execution is known as process, या और हम फाइनल जाएं तो इसको कहेंगे कि a set of instruction is running is known as process। तो जो भी इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन होगा तो हम उसको कहेंगे प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस क्या होता है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, बैच क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे आता है कि वी हैव सेवरल रिसोर्सेस, एज आई टोल्ड यू, वी हैव सीपीयू, वी हैव सीपीयू, वी हैव आईओ। तो अब जो भी प्रोसेस होता है, जो भी हमारा प्रोसेस होता है, उसको क्या होता है, दिस हैज सर्टेन नीड। और इसका नीड क्या हो सकता है, दो टाइप का नीड हो सकता है, या तो इसको सीपीयू की जरूरत होगी या फिर इसको आईओ की रिक्वायरमेंट। तो एक प्रोसेस के साथ ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि दे हैव नीड सीपीयू टाइम और दे नीड आईओ टाइम। सीपीयू में क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को रन करेगा, दूसरे पे जाएगा, दूसरे को। और आईओ में क्या होगा, उसको नीड होगा किसका, यूजर को, या तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा या यूजर से कुछ इनपुट लेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आईओ, इनपुट आउटपुट। ओके, यूजर कैन बी प्लेस हियर वाया द डिस्क, आपका जो डिस्क होता है उससे भी वो इनपुट आउटपुट ले सकता है, या दिस कैन बी मेमोरी, मेमोरी से भी वो इनपुट आउटपुट ले सकता है। तो दो टाइप का रिक्वायरमेंट होता है किसी प्रोसेस का, आइदर उसको सीपीयू का रिक्वायरमेंट होता है या आईओ का रिक्वायरमेंट होता है। तो सीपीयू का रिक्वायरमेंट होता है, जितने देर के लिए रिक्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सीपीयू बर्स्ट टाइम। ओके, और आईओ का रिक्वायरमेंट जितने देर तक होता है उसको कहा जाता है इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। गेट इट, सीपीयू बर्स्ट टाइम, आईओ बर्स्ट टाइम, ये दो नीड होता है किसी भी प्रोसेस का। चलिए, तो अब जो उसको सीपीयू का नीड होगा
तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि which kind of process does not need CPU? Which kind of process does not need CPU? Sir, a process which in which there are input output operations are there. Yes, those type of process which have a only input output need, उनको कहा जाता है इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेस एंड विच हैव अ सीपीयू नीड, जिनको ज्यादा सीपीयू का नीड है वो सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो सीपीयू जो बर्स्ट टाइम साइकिल है उसको कैरेक्टराइज किया गया एग्जीक्यूशन विच आर अल्टरनेट बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट एक्टिविटी। मतलब सीपीयू का रिक्वायरमेंट होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस का रिक्वायरमेंट होगा। सीपीयू टाइम यहाँ पे जो होता है आर जनरली मच शॉर्टर देन इनपुट आउटपुट टाइम। जो सीपीयू के लिए बर्स्ट टाइम होता है दैट इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू इनपुट आउटपुट टाइम। अगर हम बात करें यूनिट्स में, टाइम यूनिट्स में, तो सीपीयू टाइम इज जनरली इन नैनोसेकेंड एंड IO time generally in millisecond. Okay, सभी को समझ आया what I'm talking Yes, sir. about? Okay, next जो टर्म है उसको कहा जाता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है कि अब इस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग को मैं एक आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी वेदर आई विल एबल टू कंप्लीट दैट और नॉट। आपके पास अगर कोई प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, इसको सीपीयू का नीड है। लेट्स अज्यूम दैट P1 राइट नाउ इज इन अ सीपीयू, वो अपना वर्क कर रहा है। ओके, अब वर्क कर रहा है तो नेक्स्ट कोई प्रोसेस आया P4, उसको क्या है, अर्जेंसी है। इट मींस कि उसका प्रायोरिटी हाई है, प्रायोरिटी हाई है इन कंपैरिजन टू P1 जो कि अभी सीपीयू में है। तो प्रायोरिटी हाई है, तो इन दिस सिनेरियो क्या होगा, P1 को सीपीयू से बाहर निकाला जाएगा फोर्सफुल्ली। ओके, फोर्सफुली उसको बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो सिनेरियो है इसको कहा जाता है प्रीएम्पशन। तो इस टाइप का शेड्यूलिंग जहां पे कि कोई प्रोसेस अगर सीपीयू में इन एग्जीक्यूशन है तब भी हम उसको वहां पे क्या कर सकते हैं, एक सेफ स्टेट में ले जाने के बाद सीपीयू को प्रोसेस को एक सेफ स्टेट में ले जाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको सीपीयू से बाहर निकालेंगे फोर्सफुली विदाउट कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस, विदाउट कंप्लीशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, विदाउट कंप्लीशन भी इसको निकाला जा रहा है और इसको प्रिम्प्ट किया जा रहा है फोर्सफुली। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। यहां पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एन इंटरप्ट काउजेस currently running process to give up the CPU and replaced by another process.
It is a cause. What kind of cause? An interrupt has caused. And due to that interrupt, currently running process is to give up the CPU and replaced by another process. Am I clear to all of you? सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके किसको नहीं समझ में आया? कोई है जिसको नहीं समझ में आया? प्रीएम्पशन क्या होता है, क्यों होता है? अच्छा मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. Is the preemption is necessary for our system? Yes, sir. Yes, sir. Why? Because otherwise an infinite time running program may cause the CPU to jam. Okay, point has came upon that for the infinite time, it is possible that the system is running for the infinite time. Okay, like कि हम ऐसा प्रोग्राम ही बना देते हैं, गलती से कभी कभी हो जाता है कि हम इन्फिनाइट लूप में फंस जाते हैं. ठीक है, तो वही प्रोसेस पूरा का पूरा चलता चला जाता है, तो वो कहीं हॉल्ट ही नहीं हो पाता है. तो इन दैट सिनेरियो वी हैव टू हॉल्ट इट. ओके, वेरी गुड. एनी अनदर सिनेरियो? सर अगर इनपुट आउटपुट का जरूरत हो तो हम किसी प्रोसेस को उतना देर तक सीपीयू में नहीं रख सकते हैं. अगर हायर प्रायोरिटी कोई आ गया तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट वाले को वेटिंग स्टेट में डाल देते हैं. इसके लिए सर प्रीएम्पशन जरूरी है. ओके, इट मींस कि देयर इज अ नीड ऑफ इनपुट आउटपुट, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट. यस सर. ओके, एनी अदर थिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग. Multi-programming. Multi-programming. Okay. Multi-programming can be a scenario. Anything else? Now I'm giving you a situation. Like आप सिस्टम को रन कर रहे हैं, बहुत देर से रन हो रहा है, और यहाँ पे सिस्टम तो जानते हैं कि एक मैं लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि फैन, जो आपका फैन है बहुत देर से रुका हुआ है, वो एग्जॉस्ट फैन काम नहीं कर रहा है. तो इससे क्या होगा, क्या केस हो सकता है? आपका सिस्टम इंटरनली ओवरहीट हो जाए और आपका क्या हो, आपके जो आईसी हैं वो फायर हो जाए या फिर बर्नट आउट हो जाए या आपका आग ही लग जाए. तो ये सिनेरियो भी हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए, एक ऐसा सिचुएशन आ जाए जो कि हजार्डस सिचुएशन है. हजार्डस सिचुएशन ऑकर हो रहा है. तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि वी हैव टू इंटरप्ट द सिस्टम एंड वी हैव टू शट डाउन दैट सिस्टम. So in that scenario, it is very much needed that an interrupt must occur and shut down that system, because only the cause of that exhaust fan, the whole system will burnt out. Okay, so there is a need of preemption, but certain algorithm does not permit preemption. And that scenario or that scheduling is known as non-primitive CPU scheduling. Non-primitive CPU scheduling. I think it is very much evident that what must be the non-primitive CPU scheduling. Or do I have to explain that also? No, sir. Yeah, sir. I was asking that do I have to explain that what is non-primitive scheduling? Or is No, it sir. evident that what is non-primitive scheduling?
Okay, now for the sake of completion of this topic, I want to tell you that non-primitive scheduling is such type of scheduling in which some of the students are frequently coming out and coming in. Why it is happening? Please don't do this. So maybe because of the network problem. Yes, maybe, but I have to. It gives me a break in my flow. Okay, so unnecessarily don't bother to do this. Okay, so I was talking about what is non-primitive scheduling, and non-primitive scheduling is a particular scheduling scenario in which if a process has the CPU, then it will come out of the CPU only when its work is completed. Okay, when its work is completed or it has a need, it has a certain need of IO. Okay, it means that whenever a process sorry, whenever a process leaves a processor in non-primitive scheduling, it is the need or it is dependent upon that process that you want to leave the system. Okay, कि उसको कुछ इनपुट आउटपुट का नीड है तो वो बाहर चला जाएगा, या फिर वो पूरा का पूरा कंप्लीट ही होके बाहर चला जा रहा है, उसका सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, तब भी हम उसको कहेंगे कि इट इज अ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. इट मींस दैट व्हिच आई टोल्ड यू, फोर्सफुली कोई बाहर उसको नहीं कर सकता है, तो वो कहलाएगा नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग सिनेरियो. Am I clear to all of you? Yes, sir. Okay. अब देखिए यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में बताया गया है. यहाँ पे एक बार गो थ्रू हो लेते हैं. सेलेक्ट, यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू सेलेक्ट from among the process in memory that are ready to execute and allocate the CPU to one of them. मतलब हमारे पास पूल होता है, जिस पूल में हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस मौजूद होते हैं. जैसे पूल होता है ना, स्विमिंग पूल तो देखा होगा, किसी ने देखा है क्या? स्विमिंग पूल देखा है? उसमें बहुत सारे लोग हैं. उनमें से अगर हमें हमारे सिस्टम को सेलेक्ट करना हो तो किसको सेलेक्ट करेगा? वो P1 को सेलेक्ट करेगा, P2 को करेगा, P3 को करेगा, P4 को करेगा, 7, 8 किसको करेगा? तो where there is a need of selection from the existing process in the memory, then that is known as CPU शेड्यूलिंग. सेलेक्ट करना और इसको सी प्रोवाइड करना इज नोन एज सीपीयू शेड्यूल. अब सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन में टेक प्लेस व्हेन अपसेस. अब कब सीपीयू शेड्यूलिंग में डिसीजन हमें लेना पड़ेगा? डिसीजन कब लेना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट. अच्छा चलिए मैं इसके लिए ना एक बैकग्राउंड आपको और पढ़ाता हूं. व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ ए प्रोसेस. हो सकता है कि यहाँ कुछ टर्म आपको ना समझ में आ रहा हो, तो इसलिए मैं एक बैकग्राउंड स्टडी आपको और दे देता हूं कि प्रोसेस के वेरियस स्टेट्स क्या क्या होते हैं. तो प्रोसेस के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे. सबसे पहले होता है हमारा न्यू. जब कोई प्रोसेस क्रिएट होता है फर्स्ट टाइम तो वो न्यू होता है. नेक्स्ट आता है आपका रेडी स्टेट. तो जब
आपको मेमोरी, मेन मेमोरी में मिल जाती है, तो वो कहलाता है कि दैट प्रोसेस केम इनटू द रेडी स्टेट। देन आता है आपका रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट क्या होता है? जब किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हो जाता है तो उसको कहते हैं कि दैट प्रोसेस केम इनटू द रनिंग स्टेट। नेक्स्ट स्टेट होता है आपका वेट स्टेट। वेटिंग स्टेट में कब होता है? व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और एक टर्म आपको मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा जिसको कहा जाता है टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाता है, या आपका कहा जाए देयर इज अ नीड ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ थ्रेड इज जनरेटेड बाय दैट सिस्टम। तो ये सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं सिर्फ स्टेट पे ध्यान बता रहा हूं आपको कि आपका वेटिंग स्टेट होता है जब कोई रनिंग प्रोसेस होता है, उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला जाता है, और जब वो वेटिंग जो भी उसका नीड था वो कंप्लीट हो जाता है तो वो वेटिंग स्टेट से फिर से रेडी स्टेट में चला जाता है। और जब कोई प्रोसेस अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर लेता है तो वो क्या होता है, सिस्टम से बाहर चला जाता है, इसको कहा जाता है एग्जिट स्टेट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये 5 स्टेट सभी को क्लियर है? किनका किनका कब कब प्रोसेस स्विच करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में? मैं इसको बाद में भी पढ़ाऊंगा, जब मैं प्रोसेस के बारे में पढ़ा रहूंगा, प्रोसेस लिंक पढ़ा रहूंगा, तब भी मैं पढ़ाऊंगा, बट देयर वाज अ नीड ऑफ दिस, दैट्स व्हाई आई गिव यू व्हाट इज द वेरियस स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। अगर किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया हो, देन काइंडली टेल मी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्रोसेस स्टेट? यस स्टूडेंट्स, किन्हीं को कोई समस्या हो तो बता दीजिए। Yes, kindly tell me if you have any query, then tell me. मैं बाद में ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा, मैं अभी इसलिए बार बार पूछ ले रहा हूं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज टेल मी। नो सर। Right now 29 students are here in the classes. I just want only 29 attendance. Okay, I gave you the link for today's attendance, kindly fill it up, and if you have any type of problem regarding understanding of any concept which I explained today, then please tell me. I will sort it out today's itself. Sir, in the university roll number, we will write the registration number. Yes, your registration number. ट्यूटोरियल क्लास किन लोग के लिए ट्यूटोरियल क्लास था जी?
मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स दे देते हैं। राहुल कुमार सिंह कौन है अभी एंट्री ले रहा है? कि कुछ लोगों ने रिस्पांस वगैरह दे दिए हैं और अभी भी 2-3 मिनट है, तो चलिए ये स्लाइड एटलीस्ट कम कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है कि जैसा मैंने कहा कि वी हैव 5 प्रोसेस स्टेट। तो इन प्रोसेस स्टेट, ये जो 5 हमारे प्रोसेस स्टेट होते हैं, इन प्रोसेस स्टेट में सीपीयू शेड्यूलिंग को डिसीजन कब लेना पड़ता है? तो सबसे पहले स्विच करेगा फ्रॉम रनिंग टू स्टेट। मैंने बताया था रनिंग कर रहा है, रनिंग से वेटिंग स्टेट में जाएगा तो स्विच करना पड़ेगा। तो वहां पे सीपीयू को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो रनिंग प्रोसेस था वो तो बाहर जा रहा है, तो नया प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वी वांट दैट कि हमारा कभी भी सीपीयू जो है वो आइडल स्टेट में ना रहे। ठीक है, आइडल स्टेट में ना रहे। तो दैट्स वाई हम चाहते कि हमेशा क्या रहे, वो बिजी रहे। ओके, तो उस समय हमें सीपीयू के शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर स्विचिंग फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। रनिंग से भी रेडी स्टेट में जाता है आपका प्रोसेस। ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है। जब आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है, ठीक है, मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है, तो रनिंग से भी हमारा क्या होता है, डायरेक्टली रेडी स्टेट में चला जाता है प्रोसेस। तो वहां पे भी हमें सीपीयू शेड्यूलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। या स्विचिंग फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट, वेटिंग से जब रेडी स्टेट में जाता है तब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। या फिर जब हम किसी भी रनिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, एग्जिट स्टेट में लेकर के जाते हैं, इट मींस टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका है व्हाट इज प्रिमिटिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव। So thank you student. Medium term schedule. What is medium term schedule? Medium term scheduler is a type of scheduler. जैसे कि 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है और मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम ये होता है कि वो क्या करता है, डायरेक्टली रनिंग स्टेट से किसी भी प्रोसेस को आपका रेडी स्टेट में लेके जाता है। तो वहां पे जो शेड्यूलर का रिक्वायरमेंट होता है, उस शेड्यूलर को मीडियम टर्म शेड्यूलर हम लोग कहते हैं। जब आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है आपका न्यू से रेडी के बीच में, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है आपका रेडी से रनिंग के बीच में, और मीडियम टर्म शेड्यूलर काम करता है आपका रनिंग से रेडी के बीच। ठीक है, 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, ये अलग अलग पोजीशन पे वर्क करते हैं। क्यों हम इनको कहते हैं, ये हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टाइम इज ओवर फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।